A common example of using the resource data type. रूपम बोलो। क्या कर रही है? क्या कब खत्म चले सर म्यूट कर दिए। सर दो फोन से चलाते हैं ना। सर को बोलो तो सर आज का हो गया। ठीक है। जल्दी बोलो। सर आएंगे तब ना। मैसेज कर दो। So till now it is clear to everyone that how we can सर और communicate. कितना बचा है? हाँ और सर कितना बचा है? क्यों? नहीं सर, थोड़ा 4 बजे सर थोड़ा काम था। तो 4 बजे तक हम तो कराएंगे। 4 बजे के आगे ही हो जाएगा, उससे आगे ही हो जाएगा। ओके सर, ओके। तो समझ में आया जो हम लोग देखे दिखाए? यस सर, यस सर। तो ये सब लोग इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के लिए उतना कोई ये नहीं है, ओपन सोर्स है ये। डायरेक्टली सिर्फ एक काम करना है कि उसको कैसे, उसको तुमको पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको तुम डाउनलोड कर पाओगे। और डाउनलोड नॉर्मली इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। सिर्फ जैसे हम लोग उसका सेटअप फाइल जब तुम उसको डाउनलोड करोगे वो जिप फाइल ऑर्डर में आएगा, और जिप फाइल ऑर्डर में आने के बाद उसको क्या करना है, उसको अनजिप करके तुमको सेटअप फाइल जो है उसको रन करना है, एग्जीक्यूट करना है। तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो ये सब लोग इंस्टॉल करना। सर रन करने के लिए फिर क्या ऑनलाइन होगा? कौन सा? रन करने के लिए रन करने के लिए मतलब रन सर हम पूछ रही है सॉफ्टवेयर में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। ये जो है इंस्टॉल प्रोग्राम तुम जब करने के हाँ बोलो। ओके सर। क्योंकि इसके जैसे ये पिंग कमेंट, जैसे हम पिंग कमेंट को यूज किए, ये सब कमेंट को जब हम यूज किए ना, ये अब तुमको जब ये एप्लीकेशन चलाना है उसके साथ क्या है, नेटवर्क भी चलाना है, इंटरनेट चलाना है। नहीं तो क्या होगा, ये कमेंट रन नहीं करेगा, ये सब कमेंट रन नहीं करेगा। इसीलिए नेटवर्क का जरूरत है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का जरूरत है इसमें। ठीक है? यस सर। तो जो हम शो कर रहे थे, जैसे हम लोगों का जो हुआ हम लोगों का क्या, जैसे तीन डिफरेंट डिवाइसेस को हम लोग कैसे उसको क्या है उसके बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी इफ दे आर ऑफ different networks. We are saying that in different networks two PCs cannot be connected, or two different communicating devices cannot be connected. So if we use here, we change the IP address. If we change the IP address of it, then we will see what it have to. If we change the IP address of it like 2.7, now it becomes different network, because if it is in the same network, then these three parts and these three parts will be the same. But here you can see that it is 192.168.1, but in this case it is
192.168.2. That means they are on different networks. If in the same, they are on the same network, if they are present in the same network, then their IP address network part will be the same. But here you can see their network part is different. So different means they are on the different network. And we go to the IP configuration and there change it. What we do 2.7. So we change the IP address. So now when we will try to communicate, when we goes for communication, you will see what it will do. If we want to ping 192.168.2, then .7. Now you see it will didn't able to send a packet. So see that is request timed out. Then again it will show request timed out. You will see that what happens. Now you see all the packets that is sent from 192.168.1.3 from this IP address PC to this IP address PC 192.168.2.7. All the packets sent are lost because this is on the two different networks. And in these two, if there is two different networks, then we cannot send it through like this. If we have to send it, then you should have to use the router, because router between two different networks, router acts as a communication devices. Through router, we can connect two different networks. So like this, it is not possible to communicate between two devices that are present on the different network. That's why you see that in this case, it is all the packets that have sent are lost in the middle. So this is the reason. This is the reason that we are saying that if we want to send data for communicating devices, then these communicating devices should be present in the same network, and between them they have the point-to-point communication. And if the network devices, that is this network address is different, then to communicate with them, you have to use the router. Through router basically it connects two different networks. Router basically connect two different networks. So if the PCs that is present on that two different networks will able to communicate with each other through router. So this is all about that. If the devices devices that are present in the same network, then how we can communicate with them. And if it is not in the same network, then what we will do, we'll do like this. Then the packet, whichever the packet is sent, the packet is transferred, the packet will be lost. Clear? तो ये इंस्टॉल करोगे तुम लोग, इंस्टॉल अभी कर सकते हो इंस्टॉल आफरीन? तुम्हारे पास है सिस्टम? किसके किसके पास सिस्टम है? किसके पास सिस्टम अवेलेबल है तुम लोगों के पास? आफरीन, डॉली, उज्जवल? अभी करना है सर। इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल करने से तुमको इजी होगा इंस्टॉल। अगर ये होगा, समझ में आया? मेन चीज है जो कि समझ में आया कि कैसे इसको रन करना है, कैसे ये है। हम इसीलिए कि मेरे साथ अगर करते तो मतलब इजी होता तुम लोगों का। कर पाओगे? यस सर।
ठीक है, तब इंस्टॉलेशन करना, इंस्टॉलेशन में वो वाला इंस्टॉल तब घर में इंस्टॉल करना फर्स्ट। इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तो रन नहीं कर पाओगे। So this is about the first programming, that how same network devices can communicate and if these are the present in the same network. So anyone has any question? Afrin, Dolly, Yes. clear है? डॉली तुम्हारा? सर कोई इंस्टॉल करके देखेंगे फिर रन करके देख लेंगे तो मतलब ज्यादा क्लियर होगा। इंस्टॉलेशन समझ में आया? तो इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसके बाद ये Yes, करना। sir. इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद उसके बाद ऐसे चूज करके उसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉलेशन के बाद ऐसे डिवाइस को इधर से ड्रैग करना, इधर से जैसे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो उसको ड्रैग करके फिर डिवाइसेस को देके उसके बीच में कनेक्शन करना। और कनेक्शन के बाद उसको सेटअप करने को क्या होगा, तुमको जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। आफ्टर आईपी कॉन्फ़िगरेशन दोनों का ही जब आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तब तुम डेटा ट्रांसफर कर पाओगे। Yes, sir. ठीक है? So if no one has any question, then I will end the session. If anyone has any question, please ask. So, okay, I think it is clear to everyone. Then I am ending the session. So thank you everyone. If you can Thank you, sir. have any question, then you can ask me later on. And go first install this, and after installing this, you can perform this operation. Okay. So in the next Okay. class, I will show how the PCs, those PCs are present. And these PCs are on the different networks, and how these PCs can communicate with each other. We will show in the next class that the PCs are in the different networks. It would be great अगर आप links share कर दे तो। कौन सा लिंक? इंस्टॉलेशन का? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, इंस्टॉलेशन का हम लिंक शेयर कर देंगे। ये जो है netcat.com हम दे देंगे, तब भी वो ऑफिशियल वेबसाइट है, सिस्को का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस सिस्को का उधर से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, हम शेयर कर देंगे लिंक। और एक चीज याद रखना, फर्स्ट तुम डाउनलोड तुमको नहीं करने देंगे, इसीलिए तुमको फर्स्ट अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद ही तुम डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो डाउनलोड नहीं कर पाओगे। अकाउंट बनाने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। और डाउनलोड के टाइम एक चीज याद रखना कि उधर देखोगे रिसोर्स, नीचे रिसोर्स लिखा हुआ है, और रिसोर्स में क्या है, एक ऑप्शन आएगा, देखोगे बहुत सारा ऑप्शन है उधर का। ऐसे रिसोर्स में पैकेट ट्रेसिंग बोल के ऑप्शन आएगा, उस पैकेट ट्रेसिंग को क्लिक करोगे तो एक विंडो खोलेगा। तो उस विंडो में क्या है, उस विंडो में तुम्हारा दो ऑप्शन मिलेगा, एक है विंडोज के लिए डाउनलोड, एक है लिनक्स के लिए डाउनलोड। विंडोज के अंदर 64 और 32 बिट ये दोनों प्रेजेंट है, और लिनक्स के बीच लिनक्स में ओनली 64 बिट प्रेजेंट है। लिनक्स में देखोगे ओनली 64 बिट प्रेजेंट है। तो तुम्हारा जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस में तुम डाउनलोड करोगे। तो डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, एक जिप फाइल आएगा। तो जिप फाइल को तुम अनजिप करना, अनजिप करने से क्या होगा, तुमको सेटअप फाइल मिल जाएगा इसका। तो सेटअप फाइल जब मिलेगा उसको क्या है, नॉर्मली नेक्स्ट करके उसको जैसे है नॉर्मल तुम इंस्टॉल कर पाओगे। इंस्टॉलेशन इतना कोई टफ पार्ट नहीं है सिस्को पैकेट ट्रेसर का।
क्योंकि ये भी तो ओपन सोर्स है, तो इसीलिए इसका इंस्टॉलेशन उतना मतलब टफ नहीं है। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू you, sir. सर। थैंक यू सर।